Hello, class ninth chapter heat. So, heat or heat energy. All right. So, before we discuss about heat, um, let's discuss about the states of matter. वेल स्टेट्स ऑफ मैटर से हम क्यों स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो हीट का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ओके तो सबसे पहली चीज हमें पता है वैसे तो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर अब तक ढूंढ ली गई हैं लेकिन फिर भी हम स्टार्टिंग के 3 स्टेट ऑफ मैटर पे ही चलेंगे गैसेस लिक्विड्स सॉलिड्स इनफ okay so we people know that in gases intermolecular space is large okay I will use the term molecule or constituent जो particles हैं उसके okay so intermolecular distance is large and they interact to each other very less so their molecule or their constituent in case of gas their constituent they perform linear motion or translational motion as well as rotational motion and one more vibrational motion okay so in gas all of these type of motion are possible so whenever there is motion we call it kinetic energy so they have kinetic energy so rotational kinetic energy translational kinetic energy and vibrational kinetic energy now in case of liquid again we know कि liquids have ability to flow थोड़ा गैस से कम लिबर्टी है इसमें तो once again it has tendency to do it can perform this translational motion even rotational motion और vibrational motion लेकिन इसके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो गैस से थोड़ा कम है तो once again all of these particles have kinetic energy 3 तरह की kinetic energy rotational translational and vibrational now in case of solid we know that there is very less liberty translational motion होता ही नहीं है ट्रांसलेशनल मोशन केवल तब होगा कि इधर वी आर बीटिंग इट तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे या हीट कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा तो हल्का सा ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा अदरवाइज नहीं होगा सो बट वन थिंग इसे थोड़ा सा मॉडिफाई मैग्नीफाई करें तो मैं एक मॉलिक्यूल बना दूं इसका तो it can vibrate means still in solids these constituents can have kinetic energy now remember one thing we are not dealing with the kinetic energy of a single particle as a whole the kinetic energy of all the constituent together forms a kind of energy यानी कि इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं सबके पास ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है and guess what this collective kinetic energy of this constituent is termed as heat energy तो अब जाके हम थोड़ा सा हीट को डिफाइन कर लेते हैं so we can say the sum of all types of kinetic energies that includes rotational translational and vibrational of all the constituents of body is called heat energy कहने का मतलब किसी भी बॉडी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हर तरह की काइनेटिक एनर्जीज का जो सम होगा वो उस बॉडी की हीट एनर्जी कहलाएगा तो ये अल्टीमेटली है क्या अ, हमें हीट से रिलेटेड ऐसा लगता है कि हाई टेम्परेचर टेम्परेचर एक फैक्टर है हीट एनर्जी का लेकिन टेम्परेचर हीट एनर्जी नहीं है देन व्हाट इज टेम्परेचर विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन बट थोड़ा सा हीट एनर्जी पे ही और बात कर लेते हैं इन कॉन्टेक्स्ट विद टेम्परेचर ओके ये थोड़ी सी अजीब सी डेफिनेशन है हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज बिटवीन द बॉडीज ऑफ इफ देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम दो बॉडीज के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो एक
काइंड ऑफ एनर्जी फ्लो करती है विच इज कॉल्ड हीट एनर्जी. Okay, here we can write one more thing. Heat flows from hot body, hotter कर देते हैं, hotter body to colder body unaided. स्टूडेंट्स हर जगह ये वाला पॉइंट मिसिंग होगा, अनएडेड. रिमेंबर वन थिंग, हीट कैन फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी ऑल्सो, बट वी रिक्वायर सम एडिशनल सोर्सेज फॉर दैट. बट नेचुरली अनएडेड विदाउट एनी सोर्स, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी. तो हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में ही फ्लो करती है. कोल्डर टू हॉटर, उसे सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, लाइक इन रेफ्रिजरेटर. All right, so because heat is a form of energy, so its SI unit is joule. Joule is also called Newton meter, and it is also kg meter square per second square. All right, so CGS unit is also erg or dyne centimeter or gram centimeter square per second square. But for heat energy, it is not in the trend. It is not used frequently, or even not used at all. Okay, in few books I have seen erg, the term used for heat energy, but not often. So there is a traditional unit also to measure heat, that is called calorie, and its bigger unit is kilocalorie. All right. So, but now remember one more thing, that as our dyne centimeter and gram centimeter square per second square is not in use to be measured this heat energy. CGS units erg dyne centimeter, and this erg, simply we will call it erg. It is not used nowadays to measure this heat energy. तो what happened कि ये जो कैलोरी एंड किलो कैलोरी है, it is considered as CGS unit, but it doesn't mean कि erg and calorie are equal. No, but this traditional unit is also included in CGS units. So calorie. And remember one more thing, there is a relation between calorie and joule. 1 calorie equal to 4.186 joule, or roughly it is equal to 4.2 joule. And it's just a mathematics, that 1 joule is equal to 1 by 4.2 calorie, and so on. So we know that the relation between joule and erg, it is 1 joule equal to 10 to the power 7 erg. But as I told you, it is not used to measure this heat energy, but calorie is used. And remember, 1 calorie equal to 4.2 joule. What is the definition of calorie? So 1 calorie, it is the amount of heat energy required by 1 gram water to increase its temperature from 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस. अब इसका मतलब क्या है? पहली चीज़ तो ये याद रखिए कि हीट एनर्जी सप्लाई करने में एक तो बॉडी एक्सपैंड हो सकती है, और दूसरी चीज़ उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है. फर्स्ट थिंग, यहाँ पे हम लिख सकते थे कि टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बट स्पेशली ये 14.5 टू 15.5 लिखा है क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया है कि हीट सप्लाई करते हुए ये जो टेम्परेचर रेंज है, इसमें वाटर का एक्सपेंशन नेग्लिजिबल होता है. तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो टोटली उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए है, उसमें एक्सपेंशन करने के लिए नहीं है. सो दिस इज द डेफिनेशन. सो इफ़ यू वांट टू मेजर 1 कैलोरी हीट, तो वो किसके बराबर होगी कि अगर हम वाटर को 1 ग्राम वाटर को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, तो जितनी एनर्जी उसमें कंज्यूम हुई होगी, दैट इज़ 1 कैलोरी. इन द सेम वे, इफ वी डिफाइन 1 किलो कैलोरी, then
just that term 1 gram will be replaced by 1 kg, and that's all. No, rest of the definition will remain same. So each time we are discussing heat energy, the term temperature is also coming side by side. Now, what is this temperature all about? So the temperature, the parameter used to relatively compare the degree of hotness or coldness is called temperature. तो सिंपली हॉटनेस और कोल्डनेस एक हमारे इसका सेंसेशन हम महसूस कर सकते हैं, तो उसे रिलेटिवली एक कंपैरिजन के लिए एक स्केल पे रिकॉर्ड कर लिया गया, एंड नाउ वी आर कॉलिंग इट टेम्परेचर. तो टेम्परेचर ही वो वजह है जिसका डिफरेंस हीट को फ्लो करवाता है. So we can say that the difference of temperature is responsible for the transmission of heat. यानी कि दो बॉडीज में या दो सिस्टम्स में या कई सिस्टम्स के बीच में अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो वहाँ पे हीट फ्लो करेगी. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर. फर्स्ट थिंग, ऐसा यूनिट फॉर टेम्परेचर, तो ऐसा यूनिट इसकी है केल्विन. So what are the other units? Other units are degree Celsius and degree Fahrenheit. And what is the relation between them? I will tell you. So, okay, to understand the uh, relation between different temperature scale, first you need to understand how these scale are prepared. तो generally एक लॉन्ग ट्यूब में एक सब्सटेंस रख दिया जाता है, और that substance must be liquid, and on heating it should show some expansion, greater amount of expansion. तो हम बात करेंगे मरकरी की कि इसमें मरकरी फील्ड है. तो ओके, लेट अस सपोज मैंने इसमें मरकरी फिल किया, और किसी कंडीशन में ये मरकरी इस लेवल पे है, और किसी कंडीशन में क्या, मेल्टिंग मेल्टिंग ऑफ आइस के केस में हमने इसे रख दिया. देखिए, आइस जो है, ऐसा नहीं है कि आइस हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी, 0 से नीचे पे भी आइस हो सकती है. तो लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आइस मेल्ट हो रही होती है तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है. तो इसलिए जनरली क्या किया जाता है कि मेल्टिंग आइस में रख के ये देखा जाता है कि एक जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है वो कितना होगा. ओके, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. और सॉरी, ज़्यादा ऊपर हो गया. केल्विन के लिए डिग्री नहीं लगाते, उसे सिंपली एक एक जैसे हमारी और अदर स्केल्स होती हैं उसके जैसा मानते हैं. तो इनका लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट. तो सेल्सियस स्केल के लिए जब हमने इसे मेल्टिंग आइस में रखा, तो जहाँ पे आके ये स्टेबल हुआ उसे हमने 0 मार्क दिया. फ़ारेनहाइट में 32 मार्क दिया, और केल्विन में 273 मार्क दिया. फिर इसी को बॉइलिंग वाटर में रखा. तो याद रखिए, बॉइलिंग वाटर में जो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है उस समय उसका टेम्परेचर और आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए बॉइलिंग वाटर. तो बॉइलिंग वाटर में ये लेवल जाके यहाँ पे आके स्टेबल हो गया. नाउ दिस इज अपर फिक्स्ड पॉइंट. तो सेल्सियस में हमने इसे 100 कहा, फ़ारेनहाइट में 212, और केल्विन में 373. नाउ देयर इज अ रिलेशन कि टेम्परेचर इन एनी स्केल माइनस इट्स लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट minus lower fixed point is a constant. All right, so on the basis of that, we conclude this thing. Temperature Celsius में है, minus lower point, this thing. In the same way, in Fahrenheit, TF minus its lower point upon upper fixed point minus lower fixed point. We are talking about fixed point, means it can drop below this also, it can go above this also, but these are the fixed point that at melting it will remain here, at boiling it will remain here. Okay, तो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. so it is TC upon 100 is equal to, ये तो और कुछ किया नहीं जा सकता, TF minus 32 upon 180
एंड दैट इज इक्वल टू टी के। एक चीज़ और देख रहे होंगे, केल्विन टेम्परेचर के लिए जो टी यूज़ किया जाता है दैट इज कैपिटल टी अपॉन 100। तो ये इनके आपस के रिलेशन है, इनके बेसिस पे हम इन्हें आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट 36 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो टीसी की वैल्यू ये हो गई। सो टीसी के प्लेस में रख देंगे 36 अपॉन 100 इक्वल टू टी एफ माइनस 32 अपॉन 180। ये कैंसिल हुआ। मैंने अपने लिए मुसीबत बढ़ा दी बहुत ज़्यादा, कुछ और वैल्यू लेनी थी। तो ये हो जाएगा 648 आई थिंक अपॉन 10 इक्वल टू टी एफ माइनस 32. So it is 64.8 equal to TF minus 32. So finally TF equal to 64.8 plus 32. So 96.8 degree Fahrenheit. One more, 400 degree Fahrenheit into degree Celsius. तो अब TC upon 100 equal to 400 minus 32 upon 180. So this will be 368 upon 180. So 2.04 approximately. These are some rounding off. So TC equal to, it will be roughly 204 degree Celsius. अच्छा, यहाँ पे मैं एक ट्रिक भी बता दूँ। क्विकली सॉल्व करने के लिए बहुत अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, लेकिन याद रखिएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस से करीब 500 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर होता है, सॉरी फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर होता है 100 से 500 फ़ारेनहाइट तक का, आप उसका सॉरी सॉरी 200 से 500 के बीच का जो टेम्परेचर होता है, आप उसका अगर जस्ट हाफ कर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको सही आंसर मिल जाएगा। ट्राई करके देखते हैं 200 के साथ। TC बाय 100 अपॉन 200 माइनस 32 अपॉन 180। तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करके 168 अपॉन 180। सो TC इक्वल टू 16800 अपॉन 180 which is roughly 94 degree Celsius. So approximately 100, close to 100. इन द सेम वे इसे आप कैलकुलेट कीजिए। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 250 आएगा, बट समवेयर क्लोज टू इट। तो कहीं पे अगर बहुत टाइम सेविंग चाहिए और फर्दर कैलकुलेशंस चाहिए तो आप शॉर्टकट में इसे सॉल्व करके उन कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। नेक्स्ट डिफरेंस, इट्स SI यूनिट इज जूल, इट्स SI यूनिट इज केल्विन। Heat depends upon kinetic energy, total kinetic energy of all the constituents. Short में मैंने ऐसा लिखा है, whereas temperature is an independent quantity. As we know that temperature is a fundamental quantity. Next is effects of heat. So I'm not discussing about chemical effect or any other effect. Effect of heat can change temperature, चेंज स्टेट, चेंज साइज। तो यानी कि अगर हमने किसी सब्सटेंस को हीट किया, हीट सप्लाई करने के हमारे पास सोर्सेज हैं, जैसे फ्लेम, हीटर और डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोव्स। तो उससे टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो इस तरीके से हीट और टेम्परेचर का एक रिलेशन भी हो सकता है। हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, चेंज ऑफ स्टेट, लाइक आइस को हीट करेंगे तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। वाटर को हीट करेंगे वो स्टीम में चेंज हो जाएगा, यानी कि गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। एंड चेंज ऑफ साइज यानी एक्सपेंशन। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशंस। लीनियर एक्सपेंशन, ये रॉड थी, इसे हीट किया, इंक्रीज हो गई। एरियल एक्सपेंशन, तो जैसे कोई सरफेस थी, उसे हीट किया, एक्सपेंड होके इतनी हो गई। एंड इन द सेम वे वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये कोई क्यूब था, एक्सपेंड किया, हीट किया,
और एक्सपेंड हो गया। सो जनरली डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट सब्सटेंसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग। लेकिन यहाँ पे मैं उस एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वाटर के एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ, जो कि थोड़ा अजीब होता है। दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। सो एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, तो इससे पहले कि मैं इसके बारे में बात करूँ, आपने अक्सर देखा होगा कि एक वाटर की बॉटल फुल भर के आपने जमाने के लिए रख दी आइस ट्रेन उसमें, डीप फ्रीज में। तो क्या होता है, सुबह जब आप उसमें बर्फ़ जमी हुई देखते हैं, तो साथ में जो बॉटल होती है, अम, उसे भी थोड़ा सा डिफॉर्म्ड हुआ देखते हैं। तो इसे हम समझेंगे एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में। बहुत सिंपल वर्ड में बता दें कि जैसे पानी जमता है, तो वो बॉटम से टॉप के लिए नहीं, टॉप से बॉटम के लिए जमता है। तो ये एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की वजह से होता है। मैं आपके सामने दो ग्राफ बना के दिखाऊंगा। पहला हम कंसीडर करेंगे 1 ग्राम वाटर के लिए। देखिए, मास पे असर नहीं पड़ेगा टेम्परेचर का, और इधर हम इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर। एक्चुअली हम हीट सप्लाई कर रहे होंगे, उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। हम ऐसे टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हीट सप्लाई करके कर सकते हैं। और इधर हम वॉल्यूम को मार्क कर देते हैं इन सेंटीमीटर क्यूब। दो पॉइंट हमारे लिए इंटरेस्ट के हैं, 4 डिग्री सेल्सियस और यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं ग्राफ में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं दो पॉइंट्स को हाईलाइट करके मैं आगे का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ऑलराइट, वेल, अगर मैंने 1 ग्राम आइस ली है, तो उसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होगा। अब जनरली होना क्या चाहिए, हीट करने पे वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं होता। वाटर के केस में वॉल्यूम डिक्रीज होता है, एंड देन आफ्टर इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस। सो यू कैन सी, इसे हम एनोमलस एक्सपेंशन कहते हैं, कि जिसमें टेम्परेचर बढ़ने पे वो एक्सपेंड होने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और उसके बाद एक्सपेंड होना स्टार्ट हो। दैट इज एनोमलस एक्सपेंशन। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर मैं डेंसिटी का ग्राफ बनाऊं, एंड टेम्परेचर हियर वंस अगेन, दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, 4 डिग्री सेल्सियस, और डेंसिटी हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर मेजर कर रहे हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यू नो दैट डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन वाटर, तो 1 से कम होगी। और 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी, ये हर बार लिखा जाता है, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी जो है वो वेरी होती रहती है वाटर की। ये देखिए, इंक्रीज होते इनफैक्ट थोड़ा सा कर्व, और उसके बाद फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, बट ग्रेजुअली। तो यू कैन सी, वॉल्यूम के केस में वॉल्यूम डिक्रीज होता जाता है 4 डिग्री सेल्सियस तक। और तो क्योंकि हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज हुआ है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। ये टर्म्स याद रख लीजिएगा। तो दैट इज कॉल्ड एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इसी की वजह से आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जैसे टेम्परेचर, देखिए, हमने जब वाटर बॉटल डीप फ्रीज में रखी तो उसका वॉल्यूम लेट अस सपोज इतना था। अब क्या होगा, जब हम उसे ठंडा करने के लिए रख दिया, ये हो गया, उसके बाद वो एक्सपेंड होगा टेम्परेचर कम करने पे, और कम नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इनफैक्ट वो एक्सपेंड होने लगता है। दैट इज़ वाई थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाती है बॉटल, बर्स्ट भी कर सकती है, बट ज़्यादातर ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा हवा उसके अंदर भरती हो। ओके, सो फॉर एक्वेटिक लाइफ एंड एनिमलस एक्सपेंशन, थोड़ी हेडिंग को छोटा करने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो लेट अस सपोज ये एक पॉन्ड है, ये इसमें वाटर है, और बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे, इनफैक्ट इससे भी नीचे पहुंच चुका है। नाउ व्हाट विल हैपन, खैर फिलहाल मैं 0 डिग्री पे ही मान रहा हूँ, और डिक्रीज हो रहा है, फर्दर डिक्रीज होता जा रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन, तो अभी इसका टेम्परेचर, पूरे इस पॉन्ड का टेम्परेचर लेट अस सपोज 10 डिग्री सेल्सियस था। तो वेल, क्या होगा कि जो बॉटम का
वाटर है उस तक ये जो हीट एक्सचेंज हो रही होगी, ये अपनी हीट लूज करेगा कोल्डर सराउंडिंग्स में। तो जो टॉप लेयर है वो ज़्यादा पहले ठंडी हो जाएगी। तो हो सकता है कि अभी की सिचुएशन ऐसी हो, ये 10 डिग्री सेल्सियस है और ये ऐसे ही घटता जा रहा है, ये 5 डिग्री सेल्सियस है और ओके तो ये 4 डिग्री सेल्सियस है। ये ऐसे डिक्रीज होता जा रहा है, टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है। उसके कॉन्टेक्ट में जो ये था 5 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। नाउ रिमेंबर वन थिंग, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का डेंसिटी है, रो डेंसिटी को रेफर करता है, ये मैक्सिमम होती है। और हमें पता है थोड़ा सा फ्लोटेशन का रूल है कि ज़्यादा डेंसिटी या जिस लिक्विड की होगी या जिस बॉडी की होगी वो सिंक कर जाएगा। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस वाटर वाटर में सिंक कर जाएगा। देखिए इसे मैं ऐसे करके मार्क कर रहा हूँ, तो ये वाटर में सिंक कर जाएगा। तो अब जो सिचुएशन आएगी नेक्स्ट वो कुछ ऐसी होगी। उसके बाद मान लिया ठीक है ये अभी 10 से कम हो जाएगी, मान लिया ये 5 डिग्री सेल्सियस पे आ गई और जो ये पहले इससे ऊपर 5 पे था वो 4 डिग्री सेल्सियस पे आया। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पे आएगा ये भी सिंक हो जाएगा और ये रहा 5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद ये भी डिक्रीज होते होते ये भी 4 डिग्री सेल्सियस। इससे आगे अब अगर टेम्परेचर और डिक्रीज होता है, नाउ नो मोर सिंकिंग, क्योंकि ये ज़्यादा डेंसिटी का हो चुका अब लिक्विड। इसके बाद अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस, वो कम डेंसिटी का होगा। कम डेंसिटी हमेशा ऊपर फ्लोट करती है। तो इसके बाद ये बना 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर फ्लोट करेगा, फिर बना 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या नीचे कुछ नहीं हो रहा होगा? तो इसका भी इसका असर नीचे पड़ रहा होगा, ये भी डिक्रीज होता जा रहा होगा 3 2 1 इस टाइप से। शायद ये भी डिक्रीज हो रहा होगा। 0 के बाद ये 0 डिग्री आइस बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो नाउ ये 0 डिग्री सेल्सियस बन गया, हो सकता है इसके आगे बर्फ़ भी बनने लग जाए। लेकिन जो ये आगे का प्रोसेस है अब ये स्लो हो गया। तो इससे 4 डिग्री जितना बॉटम में जो टेम्परेचर होगा वो 4 डिग्री होगा, उसका चेंज होना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अब ऊपर बर्फ़ की लेयर भी जम गई है। फिर धीरे धीरे हो सकता है ये 4 से 3 पे आ जाए, 3 से 2 पे आ जाए और होते होते ये भी 0 पे आ जाए और आगे चल के पूरा का पूरा जम जाए। लेकिन ऐसा हो पाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसी वजह से आइस एज के बारे में आप लोग जानते होंगे, मूवी नहीं, कार्टून मूवी नहीं, बट आइस एज, जिसमें पूरी अर्थ आइस से सराउंड हो गई थी, बहुत टेम्परेचर डिक्रीज हो गया था। तो उसमें भी उतनी लो टेम्परेचर की कंडीशन में भी जो ओशंस हैं उनका वाटर जो है कम्प्लीटली फ्रीज नहीं हुआ। तो दैट इज़ वाई इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट कि जो एक्वेटिक लाइफ जो वाटर है उसका एक्सपेंशन एनोमोलस है। उसका एक्सपेंशन इस तरीके से होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है वाटर की। और राइट, इस वजह से हमारे एक्वेटिक लाइफ सरवाइव कर पाती है। और अदरवाइज अगर आइस की डेंसिटी ज़्यादा होती तो जो हमारे ओशंस वगैरह हैं उनके बॉटम में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो बच नहीं पाते। कुछ दिन पहले मैं एक कार्टून देख रहा था, तो उसमें अ, वो ऐसी आइस रीजन में मछली पकड़ रहे होते हैं, ऐसे कट किया रहता है उन्होंने बर्फ़ को, अ, और वहाँ से ऐसे सिल्ली में जमी हुई फिश निकलती है। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर बर्फ़ ऊपर है तो अंदर, पानी के अंदर बर्फ़ जमी हुई नहीं होगी, अंदर पानी होगा और मोस्ट प्रोबेबली एट 4 डिग्री सेल्सियस। एक होप्स एक्सपेरिमेंट है, हालांकि ये मैंने कभी करके नहीं देखा है पर लॉजिकली लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। एक सिलिंड्रिकल चैम्बर है और उसके बीच में ऐसा एक पोर्शन है जिसमें हमने आइस भर रखी है। आइस जनरली 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मिल पाएगी या उससे थोड़ा सा लेस। अब इसमें दो थर्मामीटर लगा रखे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इनिशियली जो इसमें वाटर लिया है, लेट अस सपोज 10 डिग्री सेल्सियस का लिया है, तो दोनों के दोनों थर्मामीटर 10 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रीड करेंगे।
नाउ रिमेंबर फर्स्ट थिंग, वाटर इज अ बैड कंडक्टर। तो ऐसा नहीं है कि इजीली हीट एक्सचेंज कर रहा है और ये ऊपर का पानी भी ठंडा होने लग जाएगा, नीचे का भी, ऐसा नहीं होगा। कुछ कन्वेक्शन करेंट्स चलेंगी, उसकी वजह से कुछ हो सकता है। तो जितना भी वाटर इस पोर्शन के कांटेक्ट में है उसका टेम्परेचर घटता जाएगा। अभी भी ये 10-10 पे बना है। इन दोनों के लिए अगर ग्राफ बनाऊं, ये है थर्मामीटर 1 और ये है थर्मामीटर 2। तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, ये अलग अलग टाइम पे कर देते हैं। ये इसलिए ताकि हमें पता चले कि एक ही टाइम इंटरवल पे हम दोनों को देख रहे हैं। ओके, तो पहले 10-10 पे दोनों के टेम्परेचर थे इस स्टार्टिंग में। फिर क्या होगा, जो जो यहाँ का वाटर है ये ठंडा होने लगेगा, और जब ठंडा होते होते ये पहुँचेगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो वाटर में 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर 10 डिग्री सेल्सियस के वाटर में सिंक करने लगेगा। और जब ये सिंक करने लगेगा, पहले वाले में अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। फिर जो वाटर इसके कांटेक्ट में होगा, फिर उसका टेम्परेचर और डिक्रीज होगा, फिर ये सिंक कर जाएगा, ये डिक्रीज होता जाएगा, जबकि ऊपर वाला पोर्शन सेम टेम्परेचर पे बना रहेगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब ये पूरे लिक्विड का टेम्परेचर, यहाँ लिक्विड का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। इसके बाद और कूल होने पे इसका टेम्परेचर और गिरेगा, लेकिन यहाँ पे ये आ, अपने टेम्परेचर पे बरकरार रहेगा। सो द थिंग इज, आगे ये टेम्परेचर और गिरते गिरते ज़ीरो को अप्रोच करने लगेगा। बर्फ़ तो बनेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ आइस चाहिए, लेकिन जो भी है, इससे हमें ये पता चलता है कि ड्यू टू एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, जो वाटर है वो कूल होना स्टार्ट होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसीलिए जो अपर थर्मामीटर है उसका टेम्परेचर सेम है, लेकिन जो लोअर थर्मामीटर है उसका टेम्परेचर इट इज़ गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट हीट एंड temperature. So I think almost all the points I have covered in this lecture. So if anything is left, tell me in the comments. All right, bye bye.